करते हैं कि शब्दों का निर्माण करते हैं। तो शब्दों के निर्माण में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। तो आईएनजी जो जोड़ रहे हैं V1 से आपको V4 बनाना है। V1 से हम V4 कब बनाते हैं ये समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। V1 क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब इज कॉल्ड V1। बेस फॉर्म क्या है? जैसे वर्ब फॉर्म आप पढ़ते हो तो जहाँ पे आप देखते होंगे ग्रामर की किताबों में, ट्रांसलेशन की किताबों में, जब वर्ब का जो पहला रूप होता है वह V1 होता है। तो V1 में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? V4 बनेगा। इसमें V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। तो हम लोग V4 कब बनाते हैं? जब कोई भी काम हमारा चल रहा होता है। द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। वर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। मैं खड़ा हूं तो मेरा खड़ा रहने का काम फिनिश नहीं है। मैं खा चुका हूं तो ये काम हमारा फिनिश्ड एक्शन है। लेकिन मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्क इज ऑन द प्रोग्रेस, द वर्क इज गोइंग ऑन। आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। इसका मतलब ये है कि वर्क इज गोइंग ऑन कहने का मतलब ये है कि हमने उस काम को समाप्त नहीं किया है, काम चल रहा है। तो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जहां पे कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है, जहां पे कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिख जाए आपको, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जिरंड हो, वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो वो क्या है? जहां पे V1 के बाद हम आईएनजी लगाते हैं तो वह हो जाता है आपका V4। तो V4 कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर V4 फ्रॉम V1, तो कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, final letter. If the final letter of V1 is single consonant, before the single consonant single vowel is given. Single vowel plus single vowel plus single consonant. Single means one consonant. One consonant, then you may add ing, that is the base form of the verb. Single vowel plus single consonant plus ing. Final the double consonant. Final consonant, double the final consonant. Double the final consonant. Double the final consonant. Now look at the example. Just like cut, CUT, cut. From right to left. Try to look at from right to left. This one is the final letter. T is the final letter. Final letter. T is the final letter. It is a consonant and U is a vowel. I have written C for consonant, V for vowel. I have written vowel for V, consonant for C. This is the vowel. There is one vowel and one consonant. If the one vowel and one consonant is given, then
you add ing after that V1, then the final letter becomes double. Plus ing. CUTTING. Yes, sir. Look at the board once again. CUT, cut plus ING. ing. I have written once again so that you may see it properly. Cut plus ing, cutting. TING. Cutting. Have you understood? आप समझ चुके हैं? Yes, sir. Now I am going to discuss the rule number 2. It is the rule number 2. Two vowels plus one consonant. After this, you will add ing. The result will be no change. No change. See the example. Look, you may see there is two vowels and one consonant. Number of vowels is 2. Number of vowels is 2 and consonant is 1. Yes, sir. Look plus ing. Looking. You will not change any spelling. You have to write all the spellings here. Look. First, look. ING. Look plus ing. Looking. Have you understood it? It is a rule number 3. If the final letter of any V1 is any consonant, any single consonant, here you may see final letter. You may see the final letter. Okay. You may try to see the final letter of V1. This is one vowel plus two consonants. Two consonants. Then No change. ing, result will be no change. Yes, sir. See the example. Push. Pull plus ing. Single vowel, double consonant. You may simply write down all the spellings without any change. Yes, sir. इसका पूरा आप जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दोगे क्योंकि number of vowel is one and consonant is two consonants. I have already written number of vowel is 1 and there is two consonants. That's why if you add ing after V1, then you will not change anything. Now rule number 4. Rule number 4. If single E is given at the end of any V1, अगर किसी भी V1 के अंत में सिंगल ई दिया हुआ है, सिंगल ई is the final letter of V1, drop or omit the final E. See the example.
Write plus ing. There is a single e. Yes, sir. You may drop single e whenever you add ing. Now spelling is writing. 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 Rule number 5. If the double is given at the end of any V1, अगर किसी V1 के अंत में डबल ई दिया हुआ है, double e, in short I have written double e plus ing. Double e plus ing, no change. No change. Example. See the example. S double e C plus ing. Seeing. Rule number 6. If the final letter of any V1 is final letter, if final letter is W, X, Y, Z plus ing is equal to no change. No change. No change. See the examples. Look at the examples. Play. Examples. Play. Play plus ing, playing. Keep silence. Draw plus ing, drawing. Buzz plus ing, buzzing. Now look at the board once again. This is a single vowel and single consonant. If the final letter of V1 is a consonant, single consonant, and before the single consonant is single vowel is given. In the both the situation you have a single vowel and single consonant. Then you will double the final consonant. तब क्या करना है, जब किसी V1 के अंत में आप देखते हो सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उससे पहले सिंगल ववेल दिया हुआ है, तो आईएनजी जब जोड़ेंगे आप तो अंतिम लेटर, फाइनल लेटर मतलब सबसे लास्ट वाला जो है उसको आपको डबल कर देना है, डबल दी फाइनल लेटर. ठीक है, डबल दी फाइनल कॉन्सोनेंट. फाइनल लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है आपका. हमने लिखा डबल दी फाइनल कॉन्सोनेंट और डबल दी फाइनल लेटर, एक ही बात है. यहाँ पे हमने क्या किया, CUT कट लिखा है. हम दाहिने तरफ से इधर देख रहे हैं, ये आपका जो T लिखा हुआ है वो फाइनल लेटर है. ठीक है, उसमें हम आईएनजी जोड़ रहे हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उससे पहले देखते हैं कि सिंगल ववेल दिया हुआ है. दोनों जगहों पे हमने देखा कि सिंगल ववेल दिया हुआ है, सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने आईएनजी जोड़ दिया. आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, जो अंतिम लेटर है उसको आप डबल कर दोगे. ठीक है, समझ गए? अब देखोगे रूल नंबर 2 लिखा हुआ है. यहाँ पे हमने क्या किया, डबल वर्बल लिखा हुआ है. V1 के अंत में जो वर्ब है V1 है, बेस फॉर्म है वर्ब का, उसमें हम आईएनजी जोड़ने जा रहे हैं. तो हमने देखा कि जो V1 हमारा है उसका फाइनल लेटर तो कॉन्सोनेंट है, वो सिंगल कॉन्सोनेंट है. उससे पहले वाला लेटर डबल ववेल दिया हुआ है. Double vowels, 2 vowels and 1 consonant. Then you add ing after that.
देयर विल बी नो चेंज। क्या करेंगे, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा लुक, LOO के लुक, तो यहाँ पे फाइनल लेटर के है हमारा, जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कॉन्सोनेंट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। वोवेल कितना लिखा है, 2 वोवेल दिया हुआ है। देयर इज 2 कॉन्सोनेंट्स, 1 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे, तो आप रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज। तो ऐसी स्पेलिंग आप लिखोगे। रूल नंबर 3, 1 वोवेल and 2 consonants, then you have added ING and there will be no change। आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिखा पुल, PULL, तो यहाँ पे देखेंगे डबल कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे वोवेल कितना है, 1 है, इससे पहले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो आप ING जोड़ेंगे, उसमें क्या किया हमने, PULLING, यहाँ भी नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूल नंबर 4 देखते हैं, इफ द फाइनल लेटर ऑफ एनी V1 इज सिंगल ई, किसी भी V1 के अंत में आप देखते हो फाइनल लेटर मतलब अंतिम अक्षर जो है आपका सिंगल ई दिया हुआ है, वहां पे जब ING जोड़ना है आपको, तो ING जोड़ने से पहले आपको क्या करना होगा, सिंगल ई को हटा देना। और सिंगल ई को हटाने का कारण जानते हो, ई क्यों हट रहा है, ई हटने का कारण क्या है, टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, टू मेंटेन द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। तो उस भाषा के साउंड को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है, ई हटा दिया गया है, और उस ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, WRITE, राइट, ई का कोई उच्चारण नहीं है, कोई साउंड नहीं है उसको, ठीक है। तो इसलिए उसको हटा दिया गया है, उसका साउंड लेस है, वहां पे उसको कोई साउंड ही नहीं है, और ई रहना ऑकवर्डनेस होगा, क्योंकि हमने जो ING जोड़ा है, तो ING जो है सुफिक्स है, ING जो आई जो लेटर जो दिया हुआ है वो वोवेल है, तो ING क्या है, वोवेल सुफिक्स है, हमने वोवेल सुफिक्स जोड़ दिया है, इसलिए वहां से सिंगल ई को हटा दिया। सिंगल ई का कोई उच्चारण भी नहीं हो रहा था, इसलिए हटाया। यहाँ पे आप देखिएगा जहां पे डबल ई है, तो वहां पे डबल ई जहां पे लिखा हुआ है, तो वहां पे उसका उच्चारण हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, उसको हम पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है SEEC, तो इसका उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे हम ING जोड़े हैं, तो यहाँ पे हमने डबल ई को नहीं हटाया है, वहां उच्चारण नहीं हो रहा था, और वोवेल सुफिक्स जोड़ दिया हमने, उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको हटाया। यहाँ पे अगर किसी V1 के अंत में WXYZ लिखा हुआ है, तो वहां पे जब भी हम ING जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा नो चेंज होगा, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्ले लिखा हमने, तो Y से पहले क्या है, वोवेल है, Yes, sir. तो ये मैटर नहीं करता है। जैसे क्या करना है कि जहां पर ये Y लिखा हुआ होगा, वहां पे Y को आपको डबल नहीं करना है। यहाँ आप देखते हैं उस नियम के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ये क्या है कि जहां पे Y लिखा हुआ है, तो Y से पहले कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे CRY लिख देंगे, कराई, तो C के बाद में Y से पहले क्या है, R लिखा हुआ है, तो Y से पहले कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, उससे कोई मैटर नहीं होता। वहां पे Y के बाद में जब ING जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, आप नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे स्पेलिंग वैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे BOX लिखा हुआ है, बॉक्स में भी ING जोड़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ड्रॉ, जहां पे W लिखा हो लास्ट में V1 के, वहां भी ING जोड़ेंगे, नो चेंज होगा। और जहां बज लिखा है BUZZ, तो Z जहां है वहां नहीं चेंज करना है, जहां Z होगा इसको याद करेंगे। यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, देन आफ्टर यू विल डिस्कस एंड लेटर ऑन द क्लासेस। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और बाद में जो नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। पॉज करो। सर वो बीच जो बीच वाले रेड कलर का है, ये वाला हाँ कौन वाला? वही